चलो, some repertory routines. Mind absent-mindedness with anxiety. Delusion, imaginations. Buyer is lying on a. Buyer is जिससे corpse पे लेके जाने के पहले, like a dead body. He is lying down like a dead body there. Dullness, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending, exaltation of fancies after. Mind hatred, children of. Mind suspiciousness, mistrustfulness. Rectum constipation, ineffectual urging and straining, plugged up as if. डॉक्टर आज सकाळी 1-1.5 तास टॉयलेट मध्ये बसतो, इथंच नाही बाहेर. ह्याला शाळेला जायचं नसतं, असं नसतं ऍक्च्युअली. ह्याला खरंच त्रास होत असतो. हार्ट सर्क्युलेशन एंजाइटी, विजन ऑफ हार्ट, कोराइजा ड्यूरिंग, कोराइजा विथ हार्ट कंप्लेंट्स. हार्ट ये एक इंपॉर्टेंट अफेक्शन दिखता है एनाकार्डियम में. व्हाई आई हैव नॉट रियली अंडरस्टूड. यू नो हार्टलेसनेस वो सब तो बताया मैंने, बट हार्ट क्योंकि व्हाई आई फील इट इज इंपॉर्टेंट. एक तो ये लिटरेचर में हार्ट रिलेटेड सिम्टम, दिस इज सिंगल रेमेडी, 2-3 बार आता है ये रूटीन. वन केस आई रिमेंबर, आई हैड ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, अ वेरी क्लियर केस ऑफ एनाकार्डियम. एकदम मेरा प्रैक्टिस का 3rd ईयर 4th ईयर रहेगा, एकदम क्लियर रेमेडी. बस पेशेंट वाज टेकिंग साइकियाट्रिक ड्रग्स सिंस लास्ट 2 इयर्स. मैं बोलता हूँ आप सिर्फ होम्योपैथी लो, साइकियाट्रिक ड्रग बंद कर दो. मेरा नसीब, लक, बैड लक. ही सेज कि डॉक्टर वो दवा बहुत काम कर रहा है, तो मैं और कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ बंद कर दो. फुल फैमिली इज अगेंस्ट withdrawing medicine. 1 month passes, patient is okay. After 1 month, patient symptoms relapse. I repeat remedy, थोड़ा relief. Repeat remedy, थोड़ा ही relief. Then parents say वो एकदम out of control जा रहा है, अभी कुछ नहीं, you have to start psychiatric remedy. But I was adamant, no. पहले इतना समझता नहीं था, ठीक है ना, तो नहीं. So they बोले ठीक है, फिर तुम सर जाओ. They kept him only on allopathy, only psychiatric drugs. 3 महीने के बाद मेरे को समझा, suddenly patient had heart attack any time. Sudden, no reason, कुछ नहीं. और एकदम the saddest part was just 1 month before he got married. 1 month before शादी और after 1 month sudden heart attack any time. So something to do anacardium and heart, I don't know what. ठीक है. Extremities, playing piano from heaviness sensation of. Okay, ailments from playing piano. So comparison, Baraita का I already compared. Carcinosin, why carcinosin? Strict parents, no? Very strict parents, dominating parents. You have to do this, you have to live up to this. But in carcinosin, what is the issue? First is carcinosin is sharp, है ना? Sharp है वो, perfect है, mature है. He also wants to live up to the expectations of the parents. Up to it, है ना? So carcinosin is supposed to be what you say complementary to anacardium, है ना? आपको ऐसा दिखता है कि dominating parents है, dulled senses है, forgetfulness है, absent mindedness है, आपने anacardium दिया. Patient says डॉक्टर अभी मेरा तो चल रहा है, अच्छा सब चल रहा है और ठीक हूँ मैं अभी, और फिर भी बीच में स्ट्रेस आता है. पेरेंट्स तो ऐसे ही है, तो वो दे आर मेंटेनिंग कॉज. पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट ही है, तो अभी क्या करने का. When you see that this state is gone of memory loss, absent mindedness, senses being done, and only the situation is important now, then you give the remedy carcinosin. समझ जाओ. You can start with anacardium, but later on
many times after anacardium has completed its action, carcinosin seems to be the complementary remedy. When there are very high expectations. Alumina. Why alumina? Confusion, lack of confidence, indecisiveness. But also the situation is also similar. Alumina is also for parents who are very dominating, strict. But उनका strictness किसके लिए रहता है? उनका स्ट्रिक्टनेस इसके लिए रहता है कि इधर ही बैठने का, ऐसे ही खाने का, ऐसे ही. When you know it is about mannerisms, when they are very strict related to mannerisms, मतलब you have to write with left hand, right hand only. You can't use left hand. You have to eat food with right hand. You have to eat food with spoon. You have to stand like this. You have to wear this. So जब एकदम मैनरिज्म्स ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. हमने we did third row remedies, no? It is about image, identity, how people see, how people look at you. अरे सोसाइटी में अच्छा नहीं दिखता, ये हाथ से खाना खाता है, इसको मैंने कितने बार बोला स्पून से खाने का, है ना? मैनरिज्म्स पे बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है, और that kind of mannerisms become a big dominating factor. Then you think of alumina, because of which patient becomes completely confused as to his own identity and his own mannerisms. कि मैं अभी क्या करूँ? ड्राइंग करूँ, पेंटिंग करूँ, मैथ्स करूँ, बायोलॉजी करूँ, हाँ, आर्टिस्ट बनूँ, इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, कि क्या बनूँ? समझ रहे? That is what happens to them. वो भी वही लोग बोलते हैं ना कि अरे सोसाइटी में ना डॉक्टर को ज्यादा रिस्पेक्ट है, तू डॉक्टर ही बन, है ना? सो दैट उसमें when you see the identity is a question. Alumina, gelsium, why? हाँ, brain facts से ज्यादा anticipatory anxiety for exams, no? एनाकार्डियम हमने देखा, क्या होगा एनाकार्डियम को? भूल तो सब जाते हैं. हाँ? Complete blankness, zeroness, okay. जेल्सिमियम को क्या होता है? What anticipation? सब में anticipation ही है. अर्जेंटम, जेल्सिमियम. एग्जाम में जाने का मन नहीं करता. हाँ? एग्जाम में जाने का ही मन नहीं करता. क्यों? Good, you are close. You won't be able to write in the exam. That anacardium will also feel. That is nervousness, anticipation. सबको वही लगता है कि मैं एग्जाम में लिख नहीं पाऊंगा, मैं कुछ तो गलत करूंगा, मेरे को याद नहीं आएगा. All these remedies will feel. हाँ? Fear, all remedies have fear with anxiety. Argentum, gelsemium, anacardium. So in gelsemium, what happens is the peculiarity of the fear is that they can't face the examiner. That will predominate in the expression. जैसे मैंने constipation का बोला ना, anxiety तो फिर सबका anxiety ही लगता है. Constipation का क्या peculiarity है anacardium में? Expression, हाँ, movement नहीं हो रहा. वैसा है ना, जेल्सिमियम में क्या बोलता है वो कि डॉक्टर कल एग्जाम है ना, वो सोच के ही मेरे को डर लग रहा है, सोच के मेरे को आज ही जुलाब हो रहा है, आज ही मेरे को बुखार आ गया. So first is gelsemium is one day prior to the exam, but more importantly, it is inability to face, cowardice, inability to
फेस कॉवर्ड्स रहते हो, स्पेशली उनका कंसर्न रहता है वाइवा एग्जाम, है ना? आवाजच फुटत, हाँ। सो मेरे बाजू में ही ऐसा क्या बोलते हैं था वाइवा के समय, मेरे जस्ट पहले जाता था। सो उसको ऐसा होता था, पेपर फिर भी ठीक लिख लेता था वो, बट एग्जाम आया कि सामने एग्जामिनर बैठा, उनको देख के इसको खत्म हो जाता था, ये स्टैमरिंग और आवाज ही नहीं आता था उसके मुंह से ऐसा। एक तो मैं तो देख, और वो क्या बोलते हैं वो देखते हैं। एक बार मैं गया उसके साथ, मैं साथ में बैठा था और मैं देखता, हमेशा मैंने सुना है कि इसको ये होता है, तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि वो देखता ही नहीं था एग्जामिनर को, नीचे ही देखता था, नीचे ही देखता था, वो देखता ही नहीं था सामने। तभी शायद मेरे को जेलसी में मालूम देता था उसको। एक तो विश्वास भी नहीं था होम्योपैथी में, तो थोड़ा mental paralysis you see in all three remedies, gelsemium, anacardium, urgentum. पैरालाइज होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं आउट ऑफ द नर्वसनेस, कि आवाज नहीं आ रहा, वर्ड नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, रॉन्ग लिखता हूँ, ये सब। बट ये डिफरेंसेस है ना बहुत सटल रहते हैं, कि हमको ये देखना पड़ता है किधर ज्यादा जोर है। ऐसा नहीं कि एनाकार्डियम विल नॉट look at the examiner or anacardium will not be anxious one day prior, वो भी रहेगा, बट आप उसको बोलो कि जरा डिटेल में डिस्क्राइब करो, and you have to let the patient describe in his own words, and then you have to see ज्यादा फोकस किधर है, कि मेरा दिमाग प्रॉब्लम है या वो एग्जामिनर है। जेलसीमियम का ज्यादा फोकस एग्जामिनर पे, मैं इसको देख नहीं सकता, मैं वो पेपर को देख नहीं सकता, मैं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एनाकार्डियम का ज्यादा फोकस अपने खुद के दिमाग पे, कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे सेंसेस डल हो रहे हैं, मेरा ये ऐसा हो रहा है। बाकी थोड़ा बहुत तो सब ओवरलैप होने वाला है, यस और नो? तो वो थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल लिसनिंग, कि वेयर इज दिस पेशेंट एक्चुअली फोकसिंग ऑन in his description.